आज हम बूलियन अलजेब्रा में कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे. ओके, कैनोनिकल फॉर्म when each term of logic expression contains all variables, it is said to be canonical form. Means हर एक expression में each term contains all variables, number of variables will be equal in each term. There are two types of canonical form, SOP and POS. SOP means sum of product and POS means product of sum. Let's start with the SOP, sum of product. Okay, for an example we will take AND operation. If we combine two variables x and y with an AND operations, there are four possible combination for AND operation. X by y bar for 0 0, x bar y for 0 1, x y bar for 1 0 and x y for 1 1. यहाँ पे 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x बार, एंड 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिंपल x. ठीक है, इसी तरह से अगर आप तीन वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ पेयरिंग विल बी 2 raised to power 3 इक्वल्स टू 8. तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने, कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे इसके, 8. तो 0 0 0 0 1 0 1 0. We will do all combinations. ठीक है, डेसिमल इक्विवेलेंट टू दीज बाइनरी will be, this represents 0 1 2 3 4 5 6 7. 001 is 1. Similarly all these decimals are written. ठीक है, and terms of these decimal equivalent will be x bar y bar z bar, x bar y bar z, x bar y z bar. Similarly we will write all terms of these decimal equivalent. Each term in the standard SOP form, each term, these are individual terms, we called it as a min terms. So we will write designation of all these terms. We will write or we will denote with small m, m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6 and m7. Okay, different ways to write a standard SOP expression will be, for example, F will denote SOP expression x bar y bar z plus x y bar z bar plus x bar y bar z. Other way will be, this is 0 0 1 and this is 0 1 0 0
प्लस 0 0 1 0, sorry. Okay, this is M1, M4 and M0. This is the other way to denote a standard SOP expression. Another way is summation of all these main terms separated by comma. Another way is डायरेक्टली अगर हम लिख दें इनको 0 1 4, ठीक है. For an example, if we write f equals to x bar y x y bar, यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में दो वेरिएबल्स हैं. ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 एंड दिस इज 1 0 1 एंड 2. तो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ 1 एंड 2. ओके. अनदर एग्जाम्पल ऑफ SOP फॉर्म इज AB bar CD प्लस AB C bar D प्लस A bar B C D bar प्लस A bar B C bar D. This is 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 and 0 1 0 1. Summation of 11 13 6 and 5. Okay. Let's start with an example for SOP expression. For example, if we have to find an SOP expression for the following truth table. This is an input and this is an output of this truth table. ठीक है. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है. These are two ones which are output of this truth table. The corresponding input will be 0 1 and 1 1, 0 1 and 1 1. ठीक है. बाकी को एज इट इज़ छोड़ देंगे, लीव इट. कंसिडर दीज टू इनपुट्स जिनकी आउटपुट्स आपकी क्या हैं 1 है, जिनकी आउटपुट्स 0 हैं लीव इट, डोंट कंसिडर इट. ज़ीरो 1 these are in terms of A and B. तो 0 1 will be A bar B and 1 1 will be AB. So SOP form will be A bar B plus AB. Next type of canonical form is pause, which means product of sum. We will take an example here of an OR operation for an pause form. If we combine two variables x and y with OR operation, there are 4 possible combination: x plus y, x plus y bar, x bar plus y, x bar plus y bar. ठीक है.
this represents 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Here x represents 0 and x bar represents 1, and each of these four term is called max term. In POS we will call each term max term, and SOP we will call min terms. Okay, now we will see the table of three variables x, y, z. Number of possible combination will be same as 8. Decimal equivalent to these combinations will be 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, terms will be x plus y plus z. Similarly x plus y plus z bar, हम सारे क्या करेंगे, सारे टर्म्स लिख लेंगे अब. ठीक है, ये हो जाएगा. उसके बाद हम करेंगे डेजिग्नेशन. अब हम डेजिग्नेशन लिखेंगे इनकी. ठीक है, जैसे हमने मिन टर्म्स लिखी थी मिन टर्म्स की, ऐसे ही हम मैक्स टर्म की लिखेंगे, और मैक्स टर्म को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से. M0 सारे आप में टर्म्स लिख लेंगे, मैक्स टर्म्स यानी कि डेजिग्नेशन लिख लेंगे इनके रिगार्डिंग. कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान देना. मैक्स टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे, या आप कह सकते हो स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म होगा, वो रिप्रेजेंट करेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म से. जैसे डिफरेंट वे होंगे इनको लिखने के लिए, डिफरेंट वेज टू राइट अ स्टैंडर्ड पोस्ट एक्सप्रेशन विल बी x प्लस वाई एक्स बार प्लस वाई बार. ये आपको पता है 0 0 है, ये आपको पता है 1 1 है. ठीक है, तो ये क्या है आपका 0 3. तो आप इससे क्या करेंगे, आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M0 विद डॉट M3, सॉरी कॉमा. सिमिलरली अगर आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 3 आ जाएगा यहाँ पे. अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स बार प्लस वाई जेड. ये आपका क्या है 0 0 0 0 1 0 1 0 0. ये है 0 आपका, ये 2 एंड दिस वन इज़ 4. तो आप मैक्स टर्म से कैसे लिखेंगे इसे, M0 M2 M4 और सिग्मा 0
2 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर हमें ट्रूथ टेबल गिवन हो तो हम उसका स्टैंडर्ड फोर्स एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। हम 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम एज्यूम करते हैं कि इनपुट ये होंगी और आउटपुट आपका ये आएगा। तो ये इनपुट है आपका और ये आपका आउटपुट है। अब इसमें आप ये ध्यान रखना, एसओपी में आपने 1 कंसिडर किया था, इसमें पोस्ट में आप क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे आउटपुट में, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट्स होंगी आप वो कंसिडर करेंगे। तो 0 के कंसिडर आपकी इनपुट 0 0 है, और जो नेक्स्ट 0 है उसके कंसिडर आप आउटपुट करेंगे, सॉरी तो आपका क्या है 1 0 है। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 0 एंड 1 0, मीन्स a प्लस बी एंड a बार प्लस बी। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका a प्लस बी a बार प्लस बी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ a rectangle inside which are drawn number of variables and one circle for each variable। हम एक वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से a। everything inside the circle is a and anything outside of the circle is not a। okay, this is a and this is a not। अब हम 2 वेरिएबल का बनाते हैं, लेट्स कंसिडर 2 वेरिएबल्स a एंड b। वेन डायग्राम क्या होगा देखते हैं। लेट्स से दिस इज एन a एंड दिस इज b। दिस इज वेरिएबल a और ये आपका क्या है b वेरिएबल है। ठीक है, ये आपका a है और ये आपका b है। जो ये वाला एरिया है, अगर a की वैल्यू छोड़ दें और सिर्फ b को कंसिडर करें तो ये आपका क्या है a नॉट b, यानी कि आप सिर्फ b को कंसिडर कर रहे हैं, a को क्या कर दिया आपने रिमूव कर दिया। सिमिलरली अगर आप सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं और b को रिमूव कर देते हैं या नहीं कंसिडर करते, तो जो वैल्यू हो जाएगी इस वेन डायग्राम की वो क्या हो जाएगी a डॉट b बार, और जो आपकी ये वाली वैल्यू है बिटवीन a एंड b, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी दोनों a डॉट b। ठीक है, और जो ये बाहर वाली वैल्यू है ये ना तो आपका a वेरिएबल है और ना तो आपका क्या है b, तो ये हो जाएगी a नॉट b नॉट। ठीक है, फिर ध्यान देना हमने क्या लिया, 2 वेरिएबल लिए हैं a और b। a आपका ये पूरा है, पूरा सर्कल है, और b आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सर्कल। अगर आप सिर्फ a कंसिडर करते हैं, हमने क्या किया दोनों को थोड़ा सा मर्ज कर दिया है। अब सिर्फ अगर आप 2 वेरिएबल में से a वेरिएबल देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उसमें a वैल्यू है लेकिन b की कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और अगर हम b की वैल्यू कंसिडर करते हैं कि जिसमें a की कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिर्फ b की वैल्यू होनी चाहिए, तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे a बार डॉट b से। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा जो बिटवीन यानी कि दोनों में कॉमन वैल्यू है a और b वेरिएबल में, जो दोनों कॉमन है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे a डॉट b से, और जो दोनों में कोई कॉमन नहीं है और दोनों वेरिएबल नहीं होना चाहिए वो क्या आ जाएगा a बार b बार। ठीक है, अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे और ऑपरेशन का।
ठीक है, देखते हैं। और ऑपरेशन के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए, तो हम 2 का वेरिएबल, चलिए और ऑपरेशन के लिए बनाते हैं। 2 वेरिएबल लेंगे, ठीक है, ए बी। और ऑपरेशन क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि दोनों आपका ये, ठीक है, दोनों वेरिएबल, ठीक है। तो यानी कि आपके क्या आएंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा, और जो इससे बाहर है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार। फिर आता है आपका एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के लिए देखो, एंड ऑपरेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल कंसिडर करेंगे। एंड मतलब बोथ में, इन बोथ वेरिएबल्स कॉमन क्या है आपका, पार्ट कौन कौन से हैं, अगर आप देखेंगे तो ये आपकी कॉमन वैल्यू है, ठीक है। जो एंड होगा आपका वो ये होगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। ये आपका है ए बी, और इस आउटर जो भी है आपका ए बी बार, ठीक है। ए बी बार अगर हम देखें, अगर आपको प्रॉपर दिखाती हूँ, रुको एक मिनट। ये आपका क्या है, जो कॉमन वैल्यू है वो है आपका ए बी, और जो आपकी इस आउटर वाली आउटसाइड ए बी है वो आपका क्या है, ए बी बार, ठीक है। आप सभी को ये समझ में आ गया, कैनोनिकल फॉर्म और वेन डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, नेक्स्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। देयर विल बी 2 मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड